Hello everyone and welcome to GK Trick India. I am your educator Tanisha and today we are going to start with grade 11th biology. So the topic of today's lecture is biological classification. In this topic we are going to study about the need of classification, like importance of classification or why do we need to classify animals or organisms. Then 2 or 5 system of classification: kingdom Monera, kingdom Fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalia, and then virus, viriyoids and lichens. These subtopics we are going to cover in different video lectures. So first topic is why do we need classification or what is the importance of classification. So why do we need classification or what is the importance of classification? We can understand, we all know that our earth has different diversity of organisms, be it plants, animals or microorganisms. So we need to classify them for the better understanding, for the better diversity understanding. So this the first point indicates that for the better understanding. Then second is to help us to learn about different kinds of plants, animals and other organisms, their features, similarity and differences. We also know that there are different species of plants, there are different species of animals, there are different species of microorganisms. So we need to specify them or we need to classify them into different characters, or we can say different categories, and so that we can draw a similarity or dissimilarity in them. Then it is essential to understand the interrelationship among different organisms. The interrelationship means, like we all know that humans have been evoluted from chimpanzees or orangutans or apes kind of family. So if we know the classification, only then we can draw a interrelationship. Then classification forms a base of the development of other biological sciences. Yes, classification also helps in the base or in developing the base of other biological sciences. Then is the first scientific क्लासिफिकेशन कि जो क्लासिफिकेशन हुई थी वो फर्स्ट टाइम कैसे स्टार्ट हुई थी. तो द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज डन बाय एरिस्टोटल. ही जस्ट यूज अ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, यानी कि जो देख के पता चल रहे थे, लाइक टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, shrubs एंड herbs एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीज, दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RBC. सो दिस वाज अ वेरी बेसिक क्लासिफिकेशन कि ट्रीज को देख के उन्होंने हाइट के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे देख के उनको करेक्टराइज किया. दैट ट्री जो लॉन्ग हैं वो ट्रीज़ हैं, जो उससे शॉर्ट है हाइट में, दे आर द shrubs एंड देन लास्ट वो द herbs. एंड देन एनिमल्स को इन द प्रेजेंस, ऑन द प्रेजेंस ऑफ RBC, that is red blood cells, or absence. But there are certain limitations to this classification कि इसमें उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं बताया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं बताया, एंड एल्गी के बारे में नहीं बताया, जो लोअर प्लांट्स थे उनके बारे में नहीं बताया. So these were some limitations. So this classification or this scientific classification by Aristotle was discarded. Then comes the two system classification. This two system classification was given by Linnaeus. According to him, he classified organisms into two groups, that is Plantae and Animalia. Plantae में all plants were included and in Animalia animals were included. ये इन्होंने कैसे classify किया था कि जो plants हैं they do photosynthesis and they stay in a place, whereas the animals they walk and eat. So he divided organisms into two groups, that is plants and animals. But this system was also discarded. Why this was discarded? Because he didn't distinguish between eukaryotes and prokaryotes. उन्होंने सिर्फ animals and plants के बारे में बताया. plants कैसे होते हैं या animals कितने types के होते हैं, कैसे उनको classify किया गया, ये कुछ नहीं बताया. Then उन्होंने unicellular organisms के बारे में भी नहीं बताया, ना ही multicellular organisms के बारे में बताया. ये भी नहीं बताया कि जो plants हैं वो photosynthetic हैं या non photosynthetic हैं, या organisms हैं वो कुछ photosynthetic भी होते हैं, कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक भी होते हैं. तो इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ भी नहीं बताया. इसके बाद आता है द 5 सिस्टम या 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ द एडवांस्ड एंड वी आर यूजिंग इट. सो दिस वाज गिवन बाय R.H. Whittaker. इसमें उन्होंने क्या किया, R.H. Whittaker ने जो ऑर्गेनिज्म है फर्स्ट ऑफ ऑल उनको करेक्टराइज किया, दैट इज़ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बेसिस पे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स हैं या वो प्रोकैरियोट्स हैं. तो ये देखा गया कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं, मोनेरा, एंड मोनेरा में आते हैं यूजुअली बैक्टीरिया.
एंड देन यूकैरियोट्स, फर्दर उन्होंने उसको डिफरेंशिएट किया दैट यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं यूकैरियोट्स एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं यूकैरियोट्स. सो ऑन दिस बेसिस यू सेलुलर कौन से हुए, प्रोटिस्टा. एंड देन मल्टी सेलुलर में फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए. फिर उसमें एक उन्होंने डिफरेंस देखा क्या, कि ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दोज हु आर हैविंग सेल वॉल and those without cell wall. So those who are having cell wall are plantae and fungi, and those without are animalia. So see here, this is a divorced classified. इसमें बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि हर एक करेक्टर को अच्छे से लेकर कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पे करेक्टर उसका जो है वो डिफाइन हो रहा है और वो कैसे क्लासीफाई किया जा रहा है. इसके बाद the first kingdom is kingdom Monera. This includes bacteria. Bacteria are the sole member of this group. Here you can see a diagram I have attached. In this diagram, here are the different shapes of the bacteria. So first coccus, diplococcus, जिनके पीछे भी कोकस लगा है, द शेप इज कोकाई, जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया. देन इज बेसिलस, द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, स्पाइरेलियम और स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, एंड विब्रियो दैट इज कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया. So this is the different shapes of the bacterias. Bacterias are very abundant microorganisms. They are one of the smallest microorganisms. They are present everywhere around us, inside us. So they are abundant. We can say they are omnipresent. बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ वेरी सिंपल. जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है इट इज़ सिंपल क्योंकि ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, बट देयर बिहेवियर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. वाई देयर बिहेवियर इज़ कॉम्प्लेक्स? बिकॉज दे डोंट फॉलो अ रेगुलर पैटर्न ऑफ द बिहेवियर. सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉप्स, सम आर heterotrophs, and even in autotrophs they are further of two types: photosynthetic autotrophs and chemosynthetic autotrophs. We know what are autotrophs, which prepare their own food. ठीक है. फोटोसिंथेटिक क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट जो अपना खाना खुद से बनाते हैं. एंड सिमिलरली कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो केमिकल से अपना खाना बनाते हैं. सो दीज वर द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. देन kingdom Monera or bacteria we can say are further classified into two categories: Archaebacteria and Eubacteria. First we are going to study the Archaebacteria. Archaebacteria are those bacteria which can live in harsh habitats. Harsh habitats are the unusual habitats. Like हम जैसे environment रह रहे हैं, this is favorable environment for us. We all know certain enzymes, proteins, even bacteria. ये सब कुछ क्या करते हैं? एक particular optimum temperature, optimum pH इन पे काम करते हैं या इन पे जिंदा रहते हैं. इनके अलावा जो उनको temperature मिल रहा है या उनको habitat मिल रहा है उसको हम क्या कह देते हैं? Harsh habitat. फॉर एग्जाम्पल हेलोफाइल्स. हेलोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में भी रह सकते हैं. ठीक है. उनमें ऑस्मोटिक जो रेगुलरिटी होती है वो इतनी होती है कि वो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में भी रह सकते हैं. देन थर्मोएसिडोफिलस जो बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं. ठीक है. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस हॉट स्प्रिंग्स का, कि जो नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जहाँ से गर्म पानी निकलता है वहाँ पर भी इतने जो बैक्टीरियाज है वो यहाँ रह सकते हैं. देन मिथेनोजेंस विच आर प्रेजेंट इन द मार्शी एरियाज. मार्शी एरियाज आर दोज एरिया वेयर मिथेन गैस इज रिलीज्ड. सो वन सच एग्जाम्पल इज दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ ruminants and there they produce methane gas and their dung can be used as biogas, क्योंकि वो वहाँ पे मिथेनोजन बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं. अब वाई आर्कीबैक्टीरियाज आर सो स्पेशल? क्यों वो हार्श इन्वायरमेंट्स में भी रह सकते हैं? बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल type of cell wall, because they have a special type of cell wall. Cell wall is present outside the cell membrane. Let me draw it for you. बैक्टीरिया का ऐसा स्ट्रक्चर है. ठीक है. दिस इज अ कॉमन सेल मेम्ब्रेन, कॉल इट सेल मेम्ब्रेन, CM. Okay. Around it they have a cell wall which is protecting their cell membrane. तो ये जो सेल वॉल है वो इनकी इतनी ज़्यादा स्पेशल है दैट वो उनको यहाँ पे रहना अलाउ कर रही है. इन दीज इन्वायरमेंट्स उनको रहना अलाउ कर रही है. अब अगर हमारी स्किन है, अगर उसमें कुछ ऐसी स्पेशल करेक्टर आ जाए कि हमें सन बर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, हम हार्श कंडीशंस में रह सकते हैं, हमें फ्रॉस्ट नहीं हो रहा है, अगर ठंडी में जा रहे हैं, तो हम भी क्या आर्कीबैक्टीरिया की तरह हार्श इन्वायरमेंट्स में रह सकेंगे. सो दिस इज़ द कंडीशन. देन आर्कीबैक्टीरिया के बाद आते हैं यूबैक्टीरिया. यूबैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया बिकॉज दे हैव अ रिजिड सेल वॉल. उनकी सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है. एंड इफ़ दे आर मोटाइल, अगर वो मूवमेंट शो करते हैं तो दे हैव अ फ्लैजेला फॉर द मूवमेंट. यूबैक्टीरिया में फर्दर आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया विच आर नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी.
दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं बिकॉज दे हैव अ क्लोरोफिल ए। उनके पास एक क्लोरोफिल ए होता है विच इज़ सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। वी ऑल नो ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है विद विच दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो सिमिलरली जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनके पास भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड दे आर द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं दे आर यूनिसेलुलर बिकॉज हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरियाज हैं दे आर यूनिसेलुलर। दे कैन बी कॉलोनियल और फिलामेंटस। कॉलोनियल का मतलब होता है वो ग्रुप में रहते हैं एंड फिलामेंटस का मतलब होता है सिंगल, एक रहता है वो। देन देयर हैबिटेट, वो कहाँ पे रहते हैं? दे कैन बी फ्रेश वाटर, दे कैन बी मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल एल्गी की फॉर्म में भी रह सकते हैं और एसोसिएटेड विद एल्गी। ठीक है, तो ये इनका हैबिटेट है। यानी कि अगर आप इनका हैबिटेट भी देखो तो बहुत डाइवर्स है, यानी कि ये हर जगह ही प्रेजेंट होते हैं इसलिए बैक्टीरियाज। देन अगर ये कॉलोनीज में रह रहे हैं यानी कि ग्रुप में रह रहे हैं तो ये एक जेलेटिनियस शीट से सराउंडेड रहते हैं। ये जो जेलेटिनियस शीट है ये कैसी शीट होती है? एक चिपचिपी सी शीट होती है जो इनको बाहर से कवर करके रखती है फॉर द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। इसी में एक बैक्टीरिया आ जाता है दैट इज नॉस्टॉक। नॉस्टॉक इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड इट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन दी स्पेशल सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस। तो व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द नॉस्टॉक? नॉस्टॉक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? Plants cannot directly take the nitrogen that is present in the atmosphere, so they need to fix it. So they fix nitrogen into nitrites and nitrates, which are the usable forms of nitrogen. So these are done by certain bacteria. Or which type of bacteria? Certain blue-green algae, that is nostoc, and one more is Anabaena. See here the diagram. It is a filament of a nostoc. Here you can see intercalary heterocyst cell. Intercalary heterocyst cell in which the fixing takes place. So this is the structure of a nostoc, a filament of nostoc actually. Then हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरियाज हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया का पहले हमने पढ़ लिया कि वो फोटोसिंथेसिस है। नाउ सेकंड इज दे कैन बी कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या है कि वो अपना खाना तो खुद से बना रहे हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल सब्सटेंस। एंड वो केमिकल सब्सटेंस कैसा है? इनऑर्गेनिक है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो यूजली इसमें कंफ्यूज रहते हैं द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो देयर आर थ्री मेजर एलिमेंट्स दैट इज CHNO, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इफ दीज थ्री आर प्रेजेंट टुगेदर वी कॉल इट एन ऑर्गेनिक मटेरियल। लेट्स सपोज C6H12 and O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसमें C भी है, H भी है एंड O भी है, दैट मीन्स इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट इफ वी राइट वाटर H2O, इसमें कार्बन नहीं है, इट इज़ एन इनऑर्गेनिक। CO2, इसमें भी कार्बन नहीं है, इट इज़ इनऑर्गेनिक। सिमिलरली नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, एमोनिया, इनमें कोई चीज़ एब्सेंट रहती है तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं और उसमें से जो ATP है उसकी प्रोडक्शन करते हैं। ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी को जो भी एनर्जी चाहिए रहती है वो ATP से मिलती है। Also these bacteria recycle nutrients in the soil like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। क्योंकि ये उनको नाइट्रोजन या सल्फर है, फॉस्फोरस, इनकी साइकिल चलती है, वो सॉइल को वापस देते जाते हैं, तो ये रिसाइकिल होते रहते हैं न्यूट्रिएंट्स। देन इज हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एबंडेंट है नेचर में। यूजुअली दे आर डीकम्पोजर्स। यूजुअली ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, वो डीकम्पोजर्स होते हैं बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है, दे कैन बी हेल्पफुल टू मैन एज वेल एज दे आर हार्मफुल। अब हेल्पफुल देखिए, द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इवन सम ऑफ द बैक्टीरियाज लिव इन साइड अस, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ई कोलाई, दे आर वेरी 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 बेनिफिशियल। अगर वो नहीं प्रेजेंट होंगे तो हमारा जो फूड है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो कुछ क्या होते हैं? हार्मफुल भी होते हैं एंड कुछ हेल्पफुल भी होते हैं। हार्मफुल कैसे होते हैं? बहुत सारे डिजीज़ कॉज कर देते हैं, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स etc. So let's take a quick recap what we have done today. So we studied importance of classification, कि classification क्यों ज़रूरी है for the better understanding, for the diversity। हम plants and animals की similarities and dissimilarities पढ़ सकते हैं, inter relationship कर सकते हैं। Then we studied first scientific
classification by Aristotle, then we studied 2 kingdom classification by Linnaeus, and then we studied 5 kingdom classification by R.H. Whitaker. Then kingdom Monera, we started kingdom Monera with certain characteristics, then Archaebacteria, and then we studied about Eubacteria. So this was all. Thank you very much. If you like this video, do like, share and subscribe with your friends. Thank you very much.